Hello children, good morning. So this is next part of the lesson, how many squares. Let's start now. Go to page number 43 first. Page number 43. Okay. So you will get there practice time. You will start practice time questions today. Okay. So we have question number 1. Question number 1. Let's see what is there. This is one of the sides ऑफ अ शेप. ठीक है, ये जो है ना एक साइड है, ओनली वन साइड इज देयर. और ये क्या है, ये स्क्वायर्ड सीट है या फिर स्क्वायर्ड ग्रिड यू कैन से. ओके, विद इक्वल स्क्वायर्स ऑफ सेम एरिया. सो व्हाट इज क्वेश्चन? कंप्लीट द शेप so that its area is 4 square centimeter. You have to complete the shape to make the area 4 square centimeter. So कोई भी shape बनाने के लिए we need at least how many sides? Yes, at least 3 sides, because if you use 2 sides only, so you will get angle only. Okay, you will not get a shape. So we have to add 2 more sides of the shape. So make the area 4 square centimeter. कितना बनाना है एरिया को? Yes, 4 square centimeter. So let's see what is answer, how you will add the sides. So let's see the answer. Yes, this is the answer. Yeah, this is the answer. Okay, yes, this was already given, this side was given ना. So we have, मैंने क्या किया, एक यहाँ से ऐड कर दिया और एक साइड यहाँ से मिला दिया. Now what is area of this side? Yes, you can calculate by 2 method. Number 1, count number of squares. Yes, 1 square, 2 square means 2 square centimeter, and this half plus half, this is one more 3 square centimeter, and this half plus this half, so total it is 4 square centimeter. You can calculate very easily. Otherwise you can see, if you make a 2 part of this triangle like this, if you make 2 part of this triangle, so this part is of, if you make 2 part like this, so this half part of the triangle is made of this square. Okay, and this half part is made of this square. ठीक है, मतलब कि इस स्क्वायर का अगर हम हाफ करेंगे, if you make half of this square, what is area of this square? Yes, 1 2 3 4. So half will be this area, half. So it is 2 square centimeter. Again this square is of 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. 1 2 3 4. अगर हाफ करोगे तो आपको ये एरिया मिल जाएगा. ठीक है, दिस इज अगेन 2 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो 2 + 2 = 4. ठीक है, इस मेथड से भी आप फाइंड कर सकते हो. तो एरिया विल बी 4 स्क्वायर सेंटीमीटर फॉर दिस ट्राइंगल. ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन हो गया. सो यू नोट डाउन द आंसर. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज देयर? 2 sides of a shape are drawn here. You can see 2 sides are already drawn here. Complete the shape by drawing 2 more sides. This time you have to add 2 more sides. It means it will be a shape with 4 sides na, and a shape having 4 sides, closed shape with 4 sides is called, yes, quadrilateral. Draw 2 more sides so that its area is less than 2 square centimeter. Less than 2 square centimeter. This is very interesting. आपको साइड ऐसे ड्रॉ करना है सो दैट एरिया इज लेस देन 2 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, पहली बात तो आपको यहाँ पे टू साइड्स ऐड करने हैं. ऐड 2 साइड्स जैसे भी ऐड करना है आपको, और ऐसे करना है कि एरिया 2 स्क्वायर सेंटीमीटर से कम हो. सो लेट्स सी व्हाट इज आंसर, हाउ यू विल सॉल्व दिस. यस, सो दिस इज द आंसर. इज इट करेक्ट? लेट्स चेक इट फर्स्ट. ये 2 साइड तो पहले से दिया हुआ था. ओके, और हमने 2 साइड और ऐड कर लिया. नाउ व्हाट इज एरिया? लेट्स सी दैट. ओके, सो दिस हाफ प्लस दिस हाफ, दिस इज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड दिस हाफ एंड दिस हाफ, दिस इज अगेन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. देन 1 + 1 it is 2. बट what is condition in the question? It must be less than 2. Okay, it means this is wrong. You will not make this picture, this shape. Okay, this is wrong. So let's see what is right answer. What is right answer? Before we go to right answer, let's understand one thing. If you have a square, if you have a square
okay. And if you make a half means you can make half by this, you can make half by this, okay, you can make half by this, you can make half by this, आप कैसे भी हाफ कर सकते हो, ठीक है. सो जब हाफ करते हो आप, दैट इज़ टू इक्वल पार्ट. व्हेन यू मेक हाफ, दैट इज़ टू इक्वल पार्ट ना, ये भी इक्वल पार्ट हो गया, ठीक है. दिस इज ऑल्सो टू इक्वल पार्ट ना, एंड दिस इज ऑल्सो टू इक्वल पार्ट ना, पार्ट 1 पार्ट 2, and this is also two equal part, okay. But if you do like this, if you do like this, if you have a square sheet and you do like this, if you do like this, now this is part 1, this is part 2, but this is a smaller part and this is bigger part, okay. तो ये आपको समझना है. सो इन दिस कॉन्सेप्ट व्हेन वी डू लाइक दिस, अगर कोई आपके पास एक स्क्वायर है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का एंड यू डू लाइक दिस, आप ऐसे डिवाइड करते हो, ठीक है. तो ये छोटा वाला जो पार्ट है ना, इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं. सो वी कंसीडर दिस बिगर पार्ट, इसको हम कंप्लीट मानते हैं, पूरा 1 मानते हैं, ठीक है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. जब भी आप ऐसे करोगे तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा. लेट्स सी द आंसर. यहाँ आपको फ़ायदा मिलेगा इसका. नाउ we have the right answer. Yes, this is right answer. You will draw this diagram. Why and how? Let's see. देखो, this was already given, this was already given now, two side was already given of the shape. This was the first side, this was the first side given, second side given. अब हमने क्या किया, ये साइड यहाँ पर न ला के, यहाँ ऐसे नहीं किया हमने थोड़ा सा उसको ऊपर किया. बिकॉज इन दिस स्क्वायर यू कैन सी हमने पूरा हाफ ऐसे हाफ नहीं किया है, ठीक है. थोड़ा सा उससे छोटा किया है, ये देखो, ये और ये साइड देखो. नाउ यू कैन सी इन दिस शेप, दिस इज अ शेप विद 4 साइड्स, ठीक है. दिस इज कंप्लीट हाफ ना, दिस इज कंप्लीट हाफ, दिस हाफ इज फुल हाफ, and this is again complete half. So this half plus this half will be 1 square centimeter, 1 square centimeter. But just below you can see this is not half, this is not half, because this is, ये बड़ा वाला पार्ट है, ठीक है. ये बड़ा वाला पार्ट है और छोटा वाला पार्ट है. तो ये जो है, ये और ये दिस 2, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, लेस देन हाफ. क्या हो जाएंगे, लेस देन हाफ. और व्हेन लेस देन हाफ देन इट इज़ 0. इसको हम मानते ही नहीं है. व्हेन इट इज़ लेस देन हाफ तो इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है. सो इफ़ यू फाइंड द एरिया ऑफ दिस डायग्राम, इफ़ यू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेप, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस शेप. यस, दिस हाफ प्लस दिस हाफ, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. बट ये तो कुछ नहीं हुआ और ये वाला भी कुछ नहीं हुआ. सो दिस इज ओनली 1 स्क्वायर सेंटीमीटर विच इज लेस देन 2 स्क्वायर सेंटीमीटर. हमको यही निकालना था, लेस देन 2 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो यू विल ड्रा द डायग्राम, यू विल मेक द शेप लाइक दिस. दिस वन इज रॉन्ग, यू विल नॉट मेक लाइक दिस, यू विल मेक लाइक दिस, ठीक है. अगर इसको आप पूरा हाफ कर दोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है. अगर आप इसको ऐसे बना दोगे लाइक ये और ये, ठीक है, तो ये तो हाफ हो गया. तो आपको ये पूरा हाफ लेना पड़ेगा. दैट विल बी हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा फिर से, और ये 1 यहाँ से 2 हो जाएगा जो इसने यहाँ पे किया हुआ है, जो कि ये रॉन्ग है. सो यू विल मेक लाइक दिस इज करेक्ट वन, ठीक है. लेस देन हाफ को नेगलेक्ट कर देते हैं एंड मोर देन हाफ, लेस देन हाफ को नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है. और मोर देन हाफ को हम पूरा 1 कंसिडर करते हैं, फुल. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज दिस? यस, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. Here is a rectangle of area 20 square centimeter. Let's see. This is the rectangle of area 20 square centimeter. Let's see area 20 square centimeter है, if it is or not. See, you can find the length. What is the length? Count the square. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So the length is 10 centimeter. You don't need a scale to count the length, because you can count the length by counting number of squares. And what is breadth? Breadth is 1 and 2. This is 2 squares and 2 centimeter. Okay, so the area will be 10 into 2. That's, you know very well, that is 20 square centimeter. But here you can
count the area by counting number of squares. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. It means that is correct. Now what is question? Let's see first part A of the question number 3. ये first part है, part A. What is question? Draw one straight line in this rectangle. जो rectangle मैंने पीछे देखा अभी, to divide it into two equal triangles. आपको जो रेक्टेंगल दिया हुआ है ना, इन दिस रेक्टेंगल, इसमें एक लाइन ड्रॉ करना है सो दैट ये दो इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाए, ठीक है. एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्राइंगल्स? सो लेट्स सी हाउ यू विल डिवाइड दिस. यस, दिस इज द आंसर. यू कैन मेक अ लाइन लाइक दिस, ठीक है. अब क्या हो गया? ये हो गया आपका ट्राइंगल 1, ये हो गया आपका ट्राइंगल 2. दिस इज ट्राइंगल 2, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2. बोथ ट्राइंगल्स आर सेम. यू कैन ड्रॉ लाइक दिस ऑल्सो. आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे, ठीक है. सो वट एवर इज सुटेबल. नाउ बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल, ठीक है, बिकॉज जब ये रेक्टेंगल को हम 2 पार्ट्स करते हैं, दैट इज ये होता है डायगोनल. इसको डायगोनल बोलते हैं. लाइन है ना, इसको डायगोनल बोलते हैं. दिस लाइन इज कॉल्ड डायगोनल, ठीक है. नाउ लेट्स सी द एरिया. व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्राइंगल्स? नाउ सी द सॉल्यूशन. आंसर: एरिया ऑफ each of the triangles is half of the given rectangle. Obviously total area of the rectangle is 20 square centimeter. So जब हमने बीच में लाइन ड्रॉ किया है, that is this one is half. ये भी half हो गया और ये भी क्या हो गया? half, ठीक है. Now area of this rectangle is 20 square centimeter. This is given in question and you have seen also. So the area of each of the rectangles is obviously half. Half means what? हाफ ना. हाफ किसका हाफ? हाफ 20 का हाफ, दैट इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, सो द एरिया इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. ये भी क्या हो गया? 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. बोथ एरिया इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर बिकॉज इस लाइन ने क्या किया? रेक्टेंगल को हाफ कर दिया. ओके, दैट वेरी इजी. यू विल नोट डाउन दिस प्रॉपरली. नाउ पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3, सेकेंड पार्ट. ड्रा वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल. अगेन वही काम करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है टू डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल रेक्टेंगल्स. दिस टाइम आपको ट्राइंगल नहीं बनाना है, 2 रेक्टेंगल बनाने हैं बीच में से डिवाइड करके. व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल्स? तो जो बड़ा ट्राइंगल्स हैं उसको 2 पार्ट करना है. सो लेट्स सी कैसे किया है. यस, आप यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लो. मैंने क्या किया है? यहाँ बीच से लाइन ड्रॉ कर दिया है, ठीक है. तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट. And both rectangle, these are smaller rectangle ना, smaller rectangles हैं A B C D and B E F C, ठीक है. ये हो गया rectangle 1, ये हो गया rectangle 2. both are equal rectangle because you can count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. This is 10 square centimeter. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 square centimeter, ठीक है. It means the diagram is okay. You can do like this also. आप यहाँ से भी लाइन ड्रॉ कर सकते थे, ठीक है. सो ये क्या हो जाता? ये हो जाता रेक्टेंगल 1 एंड दिस वुड बी रेक्टेंगल 2. आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, बट आई हैव डन लाइक दिस. ओके, तो आपको ये वाला करना है. बीच से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये आपको रेक्टेंगल 1 मिल जाएगा, ठीक है. दिस इज रेक्टेंगल 2. सो वी हैव 2 स्मॉलर रेक्टेंगल्स. नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल्स? लेट्स सी. अगेन द सेम थिंग. एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल्स इज हाफ हो जाएगा ना, क्योंकि हमने 20 से डिवाइड किया है. ऑफ द गिवन रेक्टेंगल्स, since area of the given rectangle is 20 square centimeter, this is given. So the area of the each of the smaller rectangle, जो छोटा वाला बनाया है हमने, is 10 square centimeter. जो हमने अभी देखा, आपको दिखाया मैंने ड्रॉ करके. ओके, so you will note down this solution. Now last part C. This is part C. Draw 2 straight lines. इस बार 2 straight line ड्रॉ करने हैं, 1 नहीं 2. In this rectangle, जो लास्ट रेक्टेंगल हमने देखा वही रेक्टेंगल. To divide it into one rectangle. एक तो रेक्टेंगल बनाना है एंड 2 इक्वल ट्राइंगल्स. तो आपको 2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने हैं. क्या करने के लिए? एक रेक्टेंगल और 2 इक्वल ट्राइंगल्स बनाने हैं. एंड यू हैव टू सॉल्व दिस 2 क्वेश्चंस आल्सो. व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल? जो नया रेक्टेंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा, एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द ईच ऑफ द ट्राइंगल्स? जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा? सो लेट्स सी व्हाट इज सॉल्यूशन. यस, दिस इज द आंसर. वाओ, तो ये हमारा वही रेक्टेंगल है ना, बड़ा वाला 20 स्क्वायर सेंटीमीटर वाला. यस, ये वही रेक्टेंगल है.
तो क्या किया, वी हैव डन, मैंने पहले यहाँ से डिवाइड कर दिया है ना, यहाँ से डिवाइड किया, सो हमें क्या मिल गया, एक रेक्टेंगल मिल गया। ओके, ये मिल गया हमें, एक स्मॉलर रेक्टेंगल मिल गया, यू कैन सी ये रेक्टेंगल मिल गया हमको। तो फर्स्ट लाइन हमने यहाँ से ड्रॉ किया, फर्स्ट लाइन यहाँ से ड्रॉ किया टू गेट अ रेक्टेंगल, दैट्स क्लियर। नाउ दिस इज द हाफ पार्ट ऑफ द रेक्टेंगल, ये तो हाफ पार्ट हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर का, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर का हाफ। अब ये हाफ में से हमने फिर से क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया यहाँ से, सेकेंड लाइन, दिस वॉज द फर्स्ट लाइन एंड दिस इज द सेकेंड लाइन टू गेट टू ट्राइंगल, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2, बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल ना, ठीक है। सो यू विल ड्रॉ लाइक दिस, यू विल मेक वन लाइन फ्रॉम हियर एंड यू विल मेक सेकेंड लाइन हियर। ओके, so this is your diagram. Now let's see answer. The area of the new rectangle, मतलब ये जो छोटा वाला रेक्टेंगल बना है, ठीक है, ये क्या है, ये तो हाफ है, ठीक है। So area will be simply 10 square centimeter. Okay, so the area of the new rectangle is 10 square centimeter. Okay, now second part was what is area of these two triangles, triangle 1 and triangle 2, इसका area क्या होगा। So area of the each of the rectangle is half ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ एरिया ऑफ 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। जो हमने ट्राइंगल बनाए हैं वो किस में बनाए हैं, सेकेंड हाफ में ना। तो ये जो रेक्टेंगल में बना है ट्राइंगल, इसका एरिया कितना है, इसका भी एरिया कितना होगा, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर ना। इसका हाफ करेंगे आप, ठीक है, ये टोटल कितना हो गया, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, टोटल इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। बट डिवाइड करने पर दो ट्राइंगल बन गया है ना, तो ट्राइंगल 1 क्या हो जाएगा, 10 का हाफ, ठीक है, और ट्राइंगल 2 हो जाएगा ये भी 10 का हाफ, ठीक है। इट मीन्स 10 का हाफ कितना हुआ, 5 and this is 5. Okay, that's very easy because this was 10 and this is also 10, तो ये 10 का तो फिर हम एक और हाफ कर रहे हैं ना, this is 5 and this is 5. Okay, so how do you write an answer, area of the each of the triangles is half of the rectangle of area 10 square centimeter, so the area of each of the triangle is 5 square centimeter, that is 5, this is 5 and this is 10. You can do some 5 plus 5 10, 10 plus 10 20 and total it was 20 also. I think you understood. आपको समझ में आ गया होगा हाउ टू राइट द आंसर। मैंने जो भी एक्सप्लेन किया उसको अच्छे से देख लेना और लिखना वही है जो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। वीडियो को पॉज करके ये सारा आपको आंसर नोट कर लेना है, ठीक है। जो मैंने समझाया है वो समझने के लिए है, जो लिखा है वो आपको उसको नोट करना है कॉपी में। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।